Good morning, everybody. How are you doing? I don't think so. You look great. I want to shout. Make a shout, please. Are you okay? Yes. Alright, so it's my immense pleasure to welcome you all. I'd like to say, please give a huge round of applause for yourself. So this is my business idea in front of you. So have you ever faced this problem when you're stuck in the parking lot? You went for shopping and you just came back and you have another meeting, so you're stuck in the parking. Please raise your hands. Alright, yes. So I hope you freak out or pissed off, right? And how to move your car because somebody parked the car in the wrong spot, right? So you can't move your car. Alright, it happens with me so many times, and that time one day I was traveling somewhere and I had some meeting, so I should cancel the meeting that time. So it's okay. So now we talk about myself. Who am I? Alright, Shrishti is CEO of I have 8 years experience in marketing, and this is my contact number. You can contact, right? Why we started this? Okay, innovation. What does that mean, innovation? Because that's how I stuck somewhere and I want to get this idea. How can I move from my car from that spot, right? So without technology, it wasn't possible for me. So I thought, how can I scale it? It means how can I grow my business? Let's say I want to start this business in. So how can I do that? So what kind of problem? Wrong parking or take the wrong spot, right? So somebody can take the wrong spot, right? And it's a time waste also, right? Isn't it, right? So you wasted your lot of time. So what are the solutions? So we in our company, we decided to make a QR code so we can stick on the cars, and that's how that's how we can save our time. So this QR code, when you scan the QR code, immediately the person gets the call and we can contact the owner of the car. So he can come there and he can just take out the car. So this is the possibility, and he get the message also, the notification also. So in case just he's in a meeting, so he can send somebody else, right? So this is how we can save the time. So total available market this time is 10 billions, okay? And 5 billion service available market this time, and 1 billion 40% share of available market right now. So competition, we have a lot of competition because we made this app, and after this so many companies made this similar kind of app, but they have some problem, they network issues sometimes, right? They don't get the message, okay, the ownership. But in our company is dealing a lot of our company name is Honor Hassle Free. Hassle Free, you want to hassle free in your life. So we would like to see our growth in 2023 to 2030, okay, like this. And so this is all for today. If you have any question, any queries, please feel free to ask me. Thank you so much. Please, do you have any question? Company name is Style Vista, virtually try on. So my company, we are all founding members like CEO Chetna Suthar, Hani Bhardwaj, CMO, Ranjita Gupta, CTO, the technical operator, and Tina Rangi, AI engineer. So why we started? We all are facing a problem. हमारे लाइफ में क्या होता है? हमारे पास बहुत सारे क्लॉथ्स होते हैं अपने वार्डरोब में, बहुत सारे अलग अलग तरह के, बट जब हमको ट्राई ऑन करना होता है, फाइनली कहीं जाने का डिसाइड करना होता है, हमको नहीं पता हम क्या डिसाइड करें, क्या पहने, टॉप्स और बॉटम्स एक दूसरे के साथ मैचिंग हो रहे हैं और नहीं. हमेशा हर किसी के साथ ही लाइफ में कभी ना कभी तो प्रॉब्लम होती है, चाहे गर्ल्स हो या बॉयज. ओके, तो उसके अंदर हमारे पास बहुत सारा टाइम भी चला जाता है डिसाइड करने में, और फिर हम अपने फ्रेंड से पूछते हैं क्या ये इसके ऊपर जा रहा है, और फिर वो बता भी देता है, फिर भी हम क्या सोचते हैं, अरे इसको ट्रेड का कितना ही नॉलेज है. सो वी ऑल आर डिजाइन दिस प्लान. तो हमने इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए स्टाइल विस्टा इसको प्लान किया है कि स्टाइल विस्टा एक ऐप बनाएंगे जिसके अंदर हम अपने वॉर्डरोब के जितने भी क्लॉथ्स है उन सबको अरेंज कर देंगे. एंड वी क्लिक अ फोटो ऑफ अवर, हम अपना एक पूरा कंप्लीट फोटो सेट करेंगे उसके अंदर, जस्ट लाइक स्नैपचैट
वी यूज स्नैपचैट में क्या होता है, किसी और के टैग पे उसके ऊपर अलग अलग वर्चुअली ट्राई ऑन करते हैं क्लॉथ्स को, पर हमने सोचा है कि हम अपनी खुद की फोटो के ऊपर अपने वार्डरोब की कलेक्शन से, रियल कलेक्शन नहीं, फोन के अंदर, उस ऐप के अंदर, उस कलेक्शन से वर्चुअली ट्राई ऑन करेंगे अलग अलग क्लॉथ्स को, और वहीं पर कहीं पर बैठे बैठे हम डिसाइड कर देंगे कि कौन सा क्लॉथिंग हमको जाना है, और फिर हम उसके साथ प्रोफेशनल को भी ऐड कर देंगे, सो दैट वो तो क्या होगा प्रोफेशनल फैशन डिजाइनिंग में, उनको पता है कि कौन सा ट्रेंड में चल रहा है, तो उनसे हम जो भी हमने अपना डिजाइन किया है उनसे हमको उसका रिव्यू मिलेगा कि हमको ये फाइनली रखना है या नहीं रखना है। तो इस तरह से हम अपना टाइम भी बचा देंगे और हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा। सो द मार्केट साइज फॉर दिस, पूरा टोटल मार्केट साइज इज 2.5 ट्रिलियन फॉर फैशन डिजाइनिंग, बट जो मैंने प्लान बनाया है उसके लिए 5,500 बिलियन प्लस का मार्केट प्लान है, एंड टोटल जो एक्चुअली जो इस प्रोडक्ट को अफोर्ड कर पाएंगे, क्योंकि हम इसमें स्टार्टिंग में प्रीमियम भी रखेंगे, सब्सक्रिप्शन के लिए आपको मनी देना होगा, तो एक्चुअली कितने पीपल उसको अफोर्ड कर पाएंगे, तो वो आपका है 5 मिलियन पीपल। सो कंपटीशन क्या है इसके अंदर, मैं पहले ही बता चुकी हूँ आपको कि स्नैपचैट करके एक ऐप है, तो उसके अंदर हम अपने खुद के फोटो के ऊपर उसको प्लान नहीं करते, तो इस तरह का मार्केट में अभी तक कोई भी प्लान नहीं है। वार्डरोब कलेक्शन के लिए भी मैंने सर्च किया था, तो 2-3 मार्केट में अवेलेबल है इस तरह के, बट वो भी सेम प्रॉब्लम कि वो खुद के ऊपर ट्राई नहीं कर सकता, हमारे ऊपर क्या सूट होगा वो कोई अभी तक मार्केट में ऐसा कुछ है ही नहीं। सो यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन यूपीआई क्या है हमारा, वही वर्चुअली ट्राई ऑन प्रोडक्ट्स प्रोफेशनल के साथ कंबाइन करना और स्टाइल, अपने क्लॉथिंग को स्टाइल करना, वो भी मार्केट से नए क्लॉथ्स परचेज किए बिना, हमारे अपने वार्डरोब कलेक्शन से ही हम उसको पैक करेंगे। तो बिजनेस मॉडल हमारा 50% ग्रॉस मार्जिन पे रहेगा, और हमारा मेन फोकस जो होगा मार्केट में जो भी ऐसे लोग जो कि फैशन कॉन्शियस है, जिनको फैशन का बहुत ज्यादा शौक है, वो हमेशा परफेक्ट दिखना चाहते हैं कहीं पे भी, तो उनके लिए हमने ये मेन प्लान किया है, और इसके लिए स्टार्टिंग में फर्स्ट ट्रायल आपकी फ्री रहेगा, और नेक्स्ट के लिए आप अगर स्टार्टिंग में इसको रखना चाहते हैं तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपको 149 पे करना होगा, एंड अगर आप उससे सेटिस्फाई है और 1 ईयर का प्लान लेना चाहते हैं तो उसके लिए 149 रुपीज फॉर 1 ईयर। ओके, सो गो टू द मार्केट प्लान, ये सब में सेम है, हमको पता है कि हमको डिजिटल मार्केटिंग करनी होगी, ऑफलाइन मार्केटिंग भी करनी होगी, पर मेन फोकस जो होगा वो हमारा होगा सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, क्योंकि वहां से हमको फैशन के बहुत सारा ऐड मिल जाएगा, एंड फिल्म स्टार प्रमोशन, और उसके साथ ही फैशन डिजाइनर प्रमोशन, उनके थ्रू भी प्रमोशन करवाना चाहेंगे अपने हिसाब का। प्रोजेक्शन क्या होगा, 1 लाख, नेक्स्ट 1 ईयर में हमारा मैक्सिमम टारगेट है कि हमको 50,000 एटलीस्ट मिनिमम 50,000 का लोगों तक रीच करना है आपको इस मार्केट के लिए। सो इसके लिए मैं जूरी मेंबर से आस्क करना चाहूंगी 2 CR for 1% इक्विटी, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द फंड आर एज के 50% तो हमारा प्रोफेशनल्स में ही जाएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डिमांड करेंगे मनी की, ऑब्वियसली बात है। हमारी टीम के लिए, टीम मेंबर के लिए 25%, 10% फॉर दी इक्विपमेंट्स, जो भी हमारे एसेट्स होंगे उसके लिए भी हमको 10% का देना होगा, 5% फॉर सेलिंग एंड मार्केटिंग, एंड अदर आर एज फॉलोज। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस प्रोजेक्ट यू कैन आस्क। या Let's say if you face any fabric issue, or how can we trust on you? Because no, you don't have to thought about it, क्योंकि ये तो हमारे खुद के वार्डरोब की कलेक्शन से ही है ना, वो खुद मार्केट से परचेज नहीं कर रहे, नहीं हम यहाँ पे किसी, या ऑलरेडी जो आपके मतलब वार्डरोब में जो भी क्लॉथ है उसी को आप उसके अंदर ऐड करोगे। If you have some of the companies had question, objections. Very good. earlier some of the companies has come up with the same idea, but I'm not aware why they failed. So what is your plan to make it succeed? नहीं, मार्केट में एक्चुअल में इसकी डिमांड तो है, और आपका ये कहना भी सही है कि मतलब कि ऑलरेडी इस पर काम हो रहा है। गूगल पे, जैसे गूगल पे वर्चुअली AI का प्लान है इसका, इस तरह से ही मैंने सर्च किया था वर्चुअली ट्राई ऑन का, बट वो सब यही है कि किसी और इमोजी, किसी और मॉडल पे वर्चुअली ट्राई ऑन करने क्लॉथ्स को, तो आई थिंक ये जाएगा इसमें मार्केट में। बट डोंट यू थिंक कि 2 करोड़ रुपए से मतलब इस वाले एरिया में कुछ होने वाला नहीं है, इसको तो बहुत ह्यूज अमाउंट चाहिए, क्योंकि मतलब इतने सारे 2 CR is nothing. कुछ है ही नहीं इसमें, पॉपुलेशन इतनी बड़ी है, कपड़े इतने मतलब बहुत बड़ी, तो आपको वो लेना पड़ेगा स्टोरेज डेटा वाला जो।
एक्चुअली ये सारे पॉइंट मैं मिस करी, मैं अपने एआई टीम से बात करूंगी इसके बारे में और आपको लिंक्डइन और इसके बारे में बिकॉज आई एम जस्ट अ सीईओ, आई डोंट नो अबाउट द एआई. Very good. If you have any other questions, you can ask. Please ask. Don't hesitate. I'll answer it. So, I do have only one question. Yes, sir. Uploading my wardrobe and doing all this, that, do you think people are so aware of doing these things कि वो अपना पूरा wardrobe आपकी ऐप पे upload करेंगे? Yes, first time या ये बहुत ज़्यादा hectic हो जाएगा क्योंकि Because सब say I have 100 shirts and so many other collections of Right, right. in my wardrobe, and किस एंगल से क्लिक करना है, क्या उसका appropriate image size होगा, किस तरीके से वो चीजें फिट होंगी, और अगर मेरी wardrobe का है तो मुझे आइडिया है मोस्ट लाइकली कि कौन सा मेरे ऊपर कैसे सूट करता है, क्या चीज मुझे कैसे जाननी है, if it is concerned to my wardrobe. या आप सही बोल रहे हैं, बट गर्ल्स के साथ ऐसा नहीं होता. वो उनको पता होता है कि ये परफेक्ट कौन सा जगह, फिर भी वो चूज करने के लिए हर बार जिस भी पार्टी या जिस भी ओकेजन में जाना है उसके अकॉर्डिंग वो चेक जरूर करेगी. Okay. और आपको ये क्वेश्चन सही है कि वार्डरोब में इतने सारे क्लॉथ्स हैं तो उन सबको इसमें एक बार क्यों हेक्टिक हो जाएगा वो तो. लाइक अब साड़ी है, हाँ आप साड़ी का इमेज कैसे अपलोड कराएंगे आप लोग कि हाँ वो साड़ी रैप होके फिर ड्रैप होके वो नजर आ जाएगी कि हाँ. फर्स्ट टाइम तो हर किसी को प्रॉब्लम होगी इस ऐप को यूज करने में. आपका ये पॉइंट परफेक्ट है, बट एक बार आप जैसे ही मार्केट में आ जाएगा ये ऐप, आप न्यू क्लॉथिंग जब भी कोई नया कपड़ा लेके आओगे उसको एक बार पहन के तो ट्राई करोगे फर्स्ट टाइम तो उसी टाइम उसका फोटो क्लिक करके डाल दोगे. और एआई को इसमें हम बहुत ज्यादा एक्सपर्ट बनाएंगे क्योंकि एआई इस मॉडल पे काम भी कर रहा है कि एग्जैक्ट आपको साइज और परफेक्शन का भी वो एआई के साथ ही होगा. फोन में जो फोटो ले रहे हो ना वो उतनी एक्यूरेसी के साथ होगा कि उसी में साइज और वो सारी चीज भी मेजर हो जाएगी. सो आपको अपने फिट ऑन है या नहीं है वो चीजें भी देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी. Being judged, it is my first experience, and obviously I'm not prepared also. And Saurabh sir has all first told me कि आप जाओ और एक जज की तरह प्रेजेंट करो. हाँ, डेफिनेटली बिजनेस का मुझे आइडिया है. सो आई फाइंड कि आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रेजेंट किया. आइडियाज बहुत अच्छे थे, स्केलेबल आइडियाज थे, उनको आप एक्सपेंड कर सकते हो. बट बेस्ट पार्ट वाज लाइक मैं शशि की बात करूं, शशि ने आज मेरे हिसाब से अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस दिया. एंड आइडिया वाज गुड एंड शी वाज full confidence also. But as far as ambiguity of business idea is concerned, I mean clarity of business idea is concerned, it was not good. I didn't find that I realized कि हमें entire working आपने पूरा नहीं किया था. जो जूरी मेंबर्स के जो क्वेश्चंस आंसर्स थे वो भी आपने अधूरे छोड़े, आंसर नहीं किए. इन द सेम वे चेतना के केस में बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन था, बहुत अच्छा आइडिया था, सब कुछ बहुत अच्छा था. और हम जूरी मेंबर्स ने ये डिसाइड भी किया है. लेकिन चेतना के आइडिया में एक प्रॉब्लम नजर आया कि लाइक उसकी लॉन्ग रन पे उसका मतलब वो फिजिबल होगा या नहीं होगा, स्केलेबिलिटी का दूसरा इशू था. डेफिनेटली आइडिया बहुत अच्छा था एंड सबसे बेस्ट प्रेजेंटेशन था. मैं नाम याद नहीं मिला, अक्षिता का. बहुत ही अच्छा क्लियरिटी थी आइडिया में, कॉन्फिडेंस था. और मतलब पता है क्या, कहीं ना कहीं आपको कुछ भी बेचना है ना, वॉट एवर थिंग यू वांट टू सेल इन लाइफ, आपके फेस से और आपकी आंखों से बहुत कुछ पता चल जाता है. और आज का जो अपना पूरा शो था उसमें सबसे बेस्ट पार्ट इनका था, अक्षिता का था. मतलब देयर वाज नो डाउट, मतलब बहुत अच्छा होमवर्क था, बहुत अच्छी क्लैरिटी थी, क्वेश्चन आंसर्स इन्होंने बहुत अच्छी जगह रिजॉल्व किए. तो एज फार एज फंड की बात है तो आई वुड मतलब आई मीन अक्षिता के आइडिया में ये था कि इस बिजनेस में हम 40 लाख रुपए लगाएंगे, 50 लाख, आई मीन डिमांड ही 50 का था, तो 50 लाख को डूबने वाले नहीं है, वो डेफिनेटली आ ही जाएंगे. सो हम लोगों की साइड से ये रिकमेंडेशन है कि जो अक्षिता ने मांगा वो हम लोगों ने पूरा देने का डिसाइड किया. और चेतना ने जो मांगा, चेतना का डिमांड था 2 करोड़ रुपए, तो उसमें हम लोगों ने 30 लाख रुपए देने का फाइनल किया है. थैंक यू. तो
स्टार्टअप जो है कर्व के नाम पे रजिस्टर्ड है, CURVE। तो नाम डिसाइड हुआ है C फॉर एक्चुअली कर्व इज द कमांड फॉर राइनोसोरस, जिसमें ज्वेलरी फील्ड का काम होता है, और C फॉर कैलकाटा एक्चुअली वहाँ का बेस है, इसके लिए कर्व का नाम दिया गया है। और उसका जो कोड है टर्न क्रिएटिविटी टू करियर, टर्न क्रिएटिविटी टू करियर, कि अपना क्रिएटिविटी को आप करियर पे ट्रांसफर कर सकते हो इस काम के लिए। तो मेट आवर क्रिएटिव टीम, सो डिटेल्स इनका स्लाइड चेंजर ले लेना, उधर रखो स्लाइड चेंजर। राइट से इसको स्लाइड शो पे करो, स्लाइड शो पे करो। ये एक्चुअली स्टार्ट इसलिए किया था इनोवेशन, स्ट्रेटेजी और कमिटमेंट। जो ना मैं रोक रहा हूँ आप लोग जिस स्टार्टअप के लिए बात कर रहे हैं, सो इट्स नेम कर्व CURVE। एंड कर्व एक्चुअली एक कमांड का नाम है, जिसमें एक्चुअली ये बेस है ऑन ज्वेलरी फील्ड पे, जो ज्वेलरी सॉफ्टवेयर पे काम होता है, जिस उसका मेन जो कमांड है कर्व। लुक एट ऑल, ओके, नॉट न्यू। कर्व जो रेलवे का पटरी है उसमें भी कर्व आता है, डिजाइन का थॉट्स में भी कर्व आता है। अगर कर्व ठीक से नहीं होता है तो होल ऑफ द डिजाइन ही चेंज हो जाता है, कॉन्सेप्ट उनका जो भी डिटेल्स मैकेनिज्म सारा चेंज हो जाता है। तो दैट इज वाई इनका नाम कर्व रखा था। और C इसलिए हुआ था क्योंकि इनका बेस कलकत्ता, एक्चुअली बहुत पहले कलकत्ता था, अभी तो कोलकाता है। सो कर्व का जो थीम है टर्न क्रिएटिविटी टू करियर, जो आपका क्रिएटिविटी है, मतलब ऐसा नहीं कि आपको डिजाइन ही करना है, बट डिजाइन सेंस के ऊपर जो भी क्रिएटिविटी है वो आप 5 मिनट है टोटल प्रेजेंटेशन। Exactly. शुरू में इतना निकाल दोगे तो वो आप करियर पे ट्रांसफर कर सकते हो। आवर क्रिएटिव टीम जो फाउंडर एंड डायरेक्टर दोनों बोथ है, 15 साल ज्वेलरी इंडस्ट्री के साथ है। और ये चालू हम लोगों ने इसलिए किया था, जो इनोवेशन, स्ट्रेटेजी और कमिटमेंट, ये तीनों के साथ स्क्रीन इसीलिए दिया हुआ चाहिए। ठीक है, ये तीनों के साथ काम नहीं होता है। कोई भी ज्वेलरी इंडस्ट्री से अगर डिजाइन हो रहा है तो इनोवेशन नहीं रहा है, मतलब कुछ भी बना के दे रहे हैं। और स्ट्रेटेजी तो मतलब बहुत कम है, 2% स्ट्रेटेजी पे काम होता है, और कमिटमेंट रहता ही नहीं। अगर कुछ ऑर्डर का काम देता है तो 10 दिन बाद उसका फाइनल होता है जो डिजाइनिंग में। प्रॉब्लम जो है टाइमलाइन, एक्सपोर्ट ऑर्डर पे टाइमलाइन फॉलो नहीं होता है, मतलब एक्सपोर्ट ऑर्डर रहेगा तो टाइमलाइन नहीं रहता है। क्रिएटिव टीम का बहुत कम है, टीम बिल्ड हो ही नहीं रहा है क्रिएटिव टीम। और टेक्निकल सपोर्ट जो कंप्यूटर कैड से होके जाना चाहिए, वो टेक्निकल सपोर्ट मतलब 99% कंपनी में टेक्निकल सपोर्ट नहीं है, तो अभी भी वो लोग हाथ से ही डिपेंड करता है। और इनके ऊपर जो सॉल्व किया था प्रॉब्लम्स के ऊपर, जो कैड विद रेंडर है, बहुत सारे कंपनीज है जो कैड में बनाने के बाद वो रेंडर प्रेजेंटेशन करते हैं, जैसे वेबसाइट में बहुत सारे ब्लू स्टोन हो गया, कैड प्लेन हो गया, तो ये लोग रेंडर प्रोवाइड करते हैं आफ्टर कैड। स्ट्रेटेजी और जो टीम वर्क रहता है तो वेल ट्रेंड वाला टीम है जो टेक्निकली सपोर्ट करता है, और मैकेनिज्म सारा मैकेनिज्म कैड के थ्रू होके जाता है, जो प्रोडक्शन में दिक्कत भी नहीं आता है। मार्केट साइज, जो ज्वेलरी फील्ड का मार्केट साइज है, सेम साइज इसमें डिटेल्स है। कंपटीशन जो है कुछ इंस्टीट्यूट है सिर्फ एजुकेशन पर्पस रहता है, जैसे IITJ हो गया, आर्ट्स एकेडमी है, PD है, इनका सिर्फ इंस्टीट्यूट एजुकेशन देता है, ये लोग सर्विस नहीं देता है, कोई भी कंपनी को सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। जो कर्व सिर्फ एजुकेशन एंड सर्विस पर्पस है, अगर ये इंस्टीट्यूट से कोई पास आउट होता है तो एटलीस्ट 1 ईयर 2 ईयर के लिए कर्व में वो फैकल्टीज के हिसाब से या तो ट्रेनिंग के हिसाब से वो ज्वाइन कर सकता है,
तो सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं दूसरा कोई कंपनी को। बिजनेस मॉडल जो है जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है उनके साथ कोलैबोरेशन करके बिजनेस कर सकते हैं। B2B और B2C के साथ प्रोजेक्ट वाइज काम कर सकते हैं, क्योंकि B2B का बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, एक्सपोर्ट ऑर्डर, लोकल ऑर्डर का, और ज्वेलरी फील्ड में कंसल्टेंसी का अलग रहता है, क्योंकि उनका पूरा प्रोडक्ट डेवलपमेंट का कोर्स कंप्लीट रहता है, पूरा प्रोडक्ट रेडी होके उसका कंसल्टेंसी उसके ऊपर भी काम कर सकते हैं। मार्केट प्लान डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग ये डिटेल्स ऐड कर सकते हैं, डिस्प्ले एड, ब्लॉग, गेस्ट पोस्ट, वीडियो कंटेंट, पब्लिक रिलेशन एंड ऐप थ्रू। ऐप थ्रू इट्स अ न्यू कॉम्बिनेशन, क्योंकि ऐप में अगर कोई भी डिज़ाइन की, जैसे आप ओला उबर पे ऐप डिसाइड करते हैं, तो ऐप में भी आप डिज़ाइन स्केच भेज देंगे तो उनका 3D मॉडल रेडी होकर प्रोवाइड हो जाएगा। और ऑफलाइन एडवर्टाइजमेंट्स, इवेंट, ट्रेड शो, सीजनल जो ज्वेलरी इवेंट्स रहते हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। फाइनेंशियल प्रोजेक्शन 23 से 28 तक है, जो विजिट और कंप्लीट का कंबाइन है। और जो लुकिंग इन्वेस्टमेंट है 1 करोड़ पर 20 लाख है और 20% इक्विटी के बेस है। और डिटेल्स जो है, जो पर्पस है, टीम, वेबसाइट एंड ऐप बिल्ड, कैश रिजर्व एंड मार्केटिंग डिटेल्स। और मिनिमम पीरियड ऑफ एग्जिट है 3 years and next round is after 1 year. तो ये डिटेल्स जो है क्या आगे कुछ आगे नहीं। हाँ, बीच में आ जाना थोड़ा सा, नहीं टाइम लेकर बाहर चलते हैं। स्टार्ट करो। हेलो हेलो, आज का हमारा टॉपिक है प्रज्ञा थिंक टैंक। प्रज्ञा थिंक टैंक सर ने प्रोवाइड किया था, उसके बाद मैंने एक टॉपिक लिया है एक्वागार्ड के लिए। ये आप देख सकते हैं एक्वागार्ड, जिसको भी पानी का डॉक्टर कहा जाता है। नेम ऑफ डिवाइस है फ्लेक्सिब वाटर प्योरीफायर, ब्रांड ऑफ यूरोका फोर्स। एक मैनेजमेंट कंपनी है जिसके सीईओ हैं प्रतीक फोटा, अपॉइंटेड एज एमडी एंड सीईओ ऑफ यूरोका फोर्स। एक और कंपनी ने अवार्ड जीता था फ्लेक्सिब वाटर प्योरीफायर के लिए। असाइनमेंट क्या दिया तुमने? तेरी भी कंपनी है इसमें या यूरिका फॉक्स पे ये प्रेजेंटेशन? नहीं, एक्वागार्ड के। हाँ, तो इसके ऊपर नहीं देना है, तो वापस आ, पहले वाले दिए थे। वापस आ। माइक बंद करके ओढ़ना, फिर घनी बेइज्जती होने वाली है। रख क्या इसको? बोला प्यार से करूँ यार। ये बात बताएंगे। एक बात, असाइनमेंट ही कुछ और था। असाइनमेंट ये था कि आपको अपनी करो। Hello everyone. Speed. Everyone wants speed. So here is Wiz. Speed matters. So what is Wiz? Wiz provides a cloud platform for testing environment. That is speed up your testing from manually to automation. So we know about the founder Soumya Sharma, the CEO, 4+ year extensive experience in test automation. Why we started? When we were working on the previous available automation tools where need a lengthy setup and the speed is very slow in the setup, and after running they take long time. Okay, and there is only there was a different language that is not available for a focused language that is widely using right now, and response is very slow for our available previous automation tools, and there is a problem for lengthy setup, and the test result is unreliable because they need to use third-party dependencies, and feedback is also slow due to they are using a extra layer of different dependencies. And what we solution provide in our
solution, we provide the real-time testing. You can see all the steps, what changes is happening during the test, and every steps, which step, how much time taking in like in milliseconds, seconds, and all the languages not preferred by the web development for the UI, and mainly people focused on JavaScript for the UI, and all the test automation used UI based automation. So we directly focused on JavaScript, and for security purpose also we combined with JavaScript plus test script. So this is JavaScript based and self optimized weight. In other tools, weight, we need to edit some weight for the weighting for the element weight. We add weight for the different type for the element weighting, for the website loading weighting. So we removed all the thing and our tool automatically weight for the elements and website load. So that is available market size is 24.7 billion, and the growth by 2027 is 52.7 billion, and the CSR growth report is 18.8% per year, and our competitor is Selenium and Puppeteer, and there's many more automation tools, but the famous is Selenium and Puppeteer. And what is difference we create between our tool and the previous available tool? That is real-time testing. As I explained, real-time testing, you can see every step, and also it's look like a time traveling. You can see all the past steps and what is happening within the steps, all the API responses and all changes you can see parallelly on the screen. And JavaScript focus, because today JavaScript is the focusedly using in the market, so we use JavaScript. And developer friendly, this is also developer friendly because unit testing also required for the developer. And fast execution, its execution is 100 times faster because we are using inside the browser, and the all above tools are using an extra layer for WebDriver layer, so that making too lengthy for the execution. And easy setup, only 3 to 4 command need to set up for our automation tool, and no need of explicit weight. There is no need for any weight because I explained here for the web loading and the element finding known. And easy integration, you can easily set up it on cloud, that is CI/CD pipeline, and you can run it by scheduled time, and you can set accordingly. Like you want to set time to 2 AM, that is automatically run and send you results on your mail and your in your messaging box. So our unique selling point is here fast setup, real-time feedback and seamless integration. Our business model is subscription-based pricing with free tier. First, we provide free tier for 500 test results, because if everyone use it, if they like it, and they provide us, if they want anything improvement, we improve it, and we can provide better solution. And if they like it and they reliable on our tool, they also purchase our basic plan, that is $67 per month for the 4 users and 1,50,000 results. And next is $267 per month, that is for the business model B2B for the 40 plus users, and unlimited test results for the per month. That is financial growth. And here here is 5 lakh users for the 10 lakh revenue, and there is 15 lakh for the 25 lakh revenue. There is 25 lakh users for the 35 lakh revenue, and there is 10 CR for 10% equity for 60 crore projected revenue. And here is our fund utilization for the operations and scaling. There is
10% and R&D for the product enhancement is 60% and sales and marketing is 20% and the reserve is 10% if anything we require in future. Thanks. Anyone have any question? So, what are the major challenges you see in growing your business? There is some major challenges like we are still working on the parallel execution on the different browser on the same time because we are using in browser, so that is the only negative point for our growing for our growth of business. So we are working on it, so we need more funding for the R&D. So there is one more question. Do you don't think the players or the competitors are already there in the market? They are very giant. They are big. Yes. Big market. Yes, Selenium is very big and they are almost 10-year-old, but they're not providing seamless speed that we are providing here because they are working with third layer between the browser and the commands. There is a WebDriver layer. They're taking too much time for the commanding, and we are directly working inside the browser, so that speed up 100 times, and with the time that is increasing by the Google also, that is Google based technology. Flat like this, and you can fold your flat. You can fold your heels into flat. Heels that fold to flat in a seconds. And the ask is 10 crore, 10% equity, and our revenue is 60 crore, and these are the sales of so we are looking for the investment to reach 10 million visits. So what is the current market size of the heel? Right. You have projected that business will touch 60 crore. So if you are saying something like this, this will touch 60 crore. So how it will touch 60 crore unless and you are aware of the demand? तो मुझे समझ नहीं आया था वो topic. That's why I serious मैंने the ask कर दिया. Good enough. Any other question from anyone? हेलो गुड इवनिंग. आज हम मेरी एक कंपनी है उसकी प्रेजेंटेशन देंगे. हम हैं मार्केटिंग में द सक्सेस स्पेशलिस्ट विथ और फाउंडिंग टीम. फाउंडिंग टीम मैं हूँ CEO दलपत बीकॉम एमकॉम और 1 साल का एक्सपीरियंस है मेरा डिजिटल मार्केटिंग में. हमने ये स्टार्ट क्यों किया, हमारा ये मार्केटिंग स्टार्ट क्यों किया इस हमने मार्केटिंग स्टार्ट किया. छोटे जो बिजनेस है, स्मॉल बिजनेस, उनकी प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए किया. उनको कोई भी डिजिटल मार्केटिंग की सर्विस नहीं दे रहा था, उनको एक्सपेंड होने के लिए मौका ही नहीं मिल रहा था. कोई भी प्लेयर है जो मार्केट में वो उनकी हेल्प नहीं कर रहा था क्योंकि उनसे जो रेवेन्यू है बहुत कम आ रहा था. और दूसरी बात, वो पैसा भी कम खर्च कर रहे थे. उनके लिए हमने एक स्पेशल प्लान, छोटे छोटे प्लान निकाला. उनके लिए ई-कॉमर्स के लिए भी मतलब थोड़े बहुत प्लान निकाले, उसके हिसाब से हमने स्टार्ट किया. सोल्यूशन, तो सोल्यूशन में डिजिटल मार्केटिंग के छोटे छोटे प्लान बनाए. तो उन प्लान्स में हमने सस्ते प्लान निकाले. जो छोटे छोटे प्लान है, जैसे साल का 24,000 हो गया, तो हमने उसमें 1500 रुपये महीने के हिसाब से चालू कर दिया ताकि छोटे प्लान हमारे प्लान को ले सके. और हमने छोटे छोटे जो दुकानदार है उनको ब्रांड बनाने के लिए अवेयर किया और उनके ब्रांड भी बनाए हमने. और अवेयरनेस के लिए उनके एड्स लाए, उनकी वेबसाइट बनाई और उनके ब्रांड अवेयरनेस करने के लिए और भी बहुत सारी चीजें. वैसे डिजिटल मार्केटिंग का CAGR तो 30% है और टोटल वर्ल्ड वाइड देखा जाए तो $150 बिलियन का मार्केट है. तो हमारी मार्केट से जैसे इंडिया ही है, तो यहाँ पे जो छोटे छोटे दुकानदार है उनको ही अपने को टारगेट करना है. तो उसके हिसाब से ये
हमारे कंपटीशन में वैसे तो रेपजेड है, ग्रोथ हैकर है, वेब चटनी है, लेकिन वैसे भी ये छोटे दुकानदारों पे फोकस नहीं कर रहे, बड़े बड़े प्लेयर के साथ कर रहे हैं, इंटरनेशनल के हिसाब से ये चीजें ले रहे हैं। तो छोटे में ये भी नहीं है, लगभग कोई एक दो कंपनी है जिनका वैसे भी कोई ब्रांड नहीं है, जो अभी स्टार्टअप हुए हैं, उनका कुछ वैसे नहीं है। हमारा यूएसपी है, हम B2B में डील करते हैं और डिजिटल मार्केटिंग के जितने भी सर्विस है वो टोटल हम प्रोवाइड करवाते हैं। हम 30 करोड़ मांग रहे हैं 8% इक्विटी के लिए, और 30 करोड़ का 150 करोड़ रेवेन्यू बढ़ाकर देंगे नेक्स्ट 3 सालों के अंदर। तो आपको क्या लगता है VR क्या होता है? आपको कोई आंसर दे सकते हैं आप? VR क्या होता है? एक्सपीरियंस या फिर आपने ट्राई? बिजनेस प्रेजेंटेशन अलग होती है। अभी आप थिंक टैंक में प्रेजेंट कर रहे हो, वहाँ जूरी मेंबर से ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। अच्छा, हर प्रेजेंटेशन अलग होती है। दिस प्रेजेंटेशन इज अबाउट, तुम्हें अपना प्रेजेंटेशन होता है। मैंने ये स्टार्टअप मेरा मैं थिंक कर रहा है, इसका नाम है VR अकेडमी, इमर्सिव लर्निंग एंड लिमिटलेस हॉराइजंस। अभी इसमें हमने क्यों स्टार्ट करा, क्योंकि है ना लोग तो जब सीखते हैं ना एजुकेशन में, वो प्रैक्टिकल या फिर प्रैक्टिकल वो से आगे निकल नहीं पाते, इसलिए हमने ये स्टार्ट करा है VR अकेडमी। प्रॉब्लम ये आते ट्रेडिशनल में कि प्रैक्टिकल नहीं होते, एक्सपीरियंस उनको सिर्फ थियोरेटिकल देते स्कूल कॉलेज या फिर एकेडमी में। तो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट नहीं देते, देयर इज अ नीड टू इंटरैक्ट लर्निंग मटेरियल्स। ये प्रॉब्लम है। इसका सॉल्यूशन है, अगर VR education content offers immersive, interactive and personalized learning aspiration. It provides practical and simulation interactive lessons and engaging activities with making learning enjoyable and effective. Enjoy students को enjoy करता है और effective भी है। अब इसमें AR और VR की जो मार्केट है, ग्लोबल साइज क्या है इसका? 29.6% है। द VR मार्केट है 14.2 बिलियन बाय CAGR ड्यूरिंग फोरकास्ट पीरियड 29। अब हम ये कंपटीशन में पहले से ही इस्टेब्लिश कर चुके हैं, बल्कि हमारा जो कंटेंट है वो क्वालिटी, इजी टू एक्सेस होगा, और ये स्टूडेंट को भी होगा, टीचर्स कॉलेजेस और इंस्टीट्यूट में भी प्रोवाइड हम कराएंगे क्वालिटी और प्रोवाइड करा दोगे। यूनिक सेलिंग पॉइंट हमारा क्या है? ये हर एज ग्रुप में हम देंगे अपना कंटेंट, और वेरियस सब्जेक्ट और ग्रुप्स में हम इंश्योर करेंगे कि सबको ये इजीली टू एक्सेस हर एज ग्रुप पे, जैसे 10 years old स्टूडेंट्स, 20 years old, हर एज ग्रुप में 50 old में। और बिजनेस वाला क्या है, सब्सक्रिप्शन बेस्ड है। कंटेंट कॉलेजेस और के लिए कस्टमाइज कर सकते हैं, खुद ही कस्टमाइज कर सकते हैं स्टूडेंट्स अपनी नीड से। गो टू मार्केटिंग क्या है? हमारा ऑनलाइन कैंपेन्स करेंगे, वर्कशॉप करेंगे, और स्कूल के साथ कोलैबोरेट करेंगे, एकेडमी के साथ, स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ। अभी फोरकास्ट के CAGR 40% तक क्वालिटी में ये हेडसेट ये हमें वर्ल्ड वाइड हम करवाएंगे 30 करोड़ और 30 करोड़ 10% इक्वलिटी। थैंक यू।
Today I am here to present my business idea, and the name of my business is Dios. It means diet plus yoga and with smile. So so this is my introduction. Myself Akshita teaching, and I have experience in yoga for more than 2 years. So the motive to start this app is or classes for better mindset. Not only for yoga is not only for physical balance या फिर physical fitness. It is all about better mindset, better body and better diet also. So we identify the problem कि हम योगा पे या फिर फिजिकल एक्सरसाइज पे तो ध्यान दे लेते हैं, लेकिन हम हेल्दी फूड मेंटेन नहीं कर पाते हैं और इमोशनल इंस्टेबिलिटी में काफी रहती है नाउअडेज, जैसी हमारी लाइफस्टाइल है, और इरेगुलरिटी भी रहती है. हम स्टार्ट तो कर देते हैं लेकिन हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं उस चीज को. तो ये प्रॉब्लम्स हमने काफी देखी और मोस्टली ये हमने हाउसवाइफ्स में ज्यादा आइडेंटिफाई की है, क्योंकि वो खुद पे ध्यान नहीं दे पाते, वो अपनी फैमिली या फिर अपने वर्क को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं. तो इसके सॉल्यूशंस जो हमारे रहेंगे वो कस्टमाइज योगासन्स रहेंगे कि जिसको जैसी नीड है हम उनके अकॉर्डिंग योगा प्लान करेंगे, उनको वो चीज प्रोवाइड करेंगे और उनको वो बताएंगे जो इजीली अवेलेबल उनके लिए फूड हो सकता है, जो उनके पास है वो उसी से बेटर कैसे कर सकते हैं. उनको एक्स्ट्रा कुछ नहीं बताएंगे जिनसे उनको एक्स्ट्रा एफर्ट लगे या फिर उनको कुछ डिफिकल्टी हो वो चीज रेगुलर या फिर मेंटेन करने में. और हम उनको डेली बेसिकली वी प्रोवाइड देम DMW मींस डेली, मंथली एंड वीकली रिपोर्ट्स, जिससे कि उनको मोटिवेशन मिलेगा, उनको वो रेगुलर रह पाएंगे कि हम ये चीज कर रहे हैं तो हमें ये रिजल्ट्स मिल रहे हैं. So market size in yoga industry according to Allied Market Research report, this is $37.46 billion globally now, and target is $66.22 billion by 2027 with 9.6% CAGR. Competition is so many apps and so many classes nowadays in market there already, like Patanjali, Yoga Institute, Habit. This is online, completely online platform, but these are offline and online both. Unique our USP will be we will provide flexible timings. We will provide flexible timings and diet according to their need and their lifestyles. और उनकी डेली रिपोर्ट्स और उनकी जो एक मील होगी, बेस्ट मील जो होगी वो हम क्लास में ही प्रोवाइड कर देंगे इन फ्रंट ऑफ अस, ताकि वो कभी मिस ही ना हो और उनके लिए वो रेगुलर रहे और उनको मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाए. और ये B2C मॉडल रहेगा. गो टू मार्केट प्लान, दोनों चीजें ऑफलाइन एंड ऑनलाइन बोथ मार्केटिंग के लिए इजी रहेगी. ऑफलाइन के लिए हम कैंप्स, इवेंट्स, फ्री वर्कशॉप भी प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑनलाइन में तो सोशल मीडिया और इन्फ्लुएंसर्स का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हैं. सर द ask is 50 lakhs for 5% equity, and utilization of funds will be 40% in marketing, 30% in maintenance, 20% will be for our team, and 10% cash reserves. Thank you so much. If you have any question. So if you will provide offline training, let's say I want to take the training, right? So don't you think it's gonna be super expensive for me because the special trainer comes to my home? No. This is not for home. This we will provide. You mentioned online. So we have to come there. No. If you want to, you come there. But if you don't want, then you can join online also. Online, but I don't think so. I can connect with you online. That is it possible? Because let's say I have some muscles or kind of problem. Yeah. Like I can't spread my body. Like it's not that much flexible. So do you think we can just? Is it good idea to take online session? No, but if you are in Jaipur, offline classes will be only for Jaipur. Online we will give all over India, but offline it is only for Jaipur. If you have particular problem, then you can come for 2 or 3 days. Then we will provide you offline session also.
But most of the time, if you are far away from our classroom, then you can join online. Thank you. Yeah, Yes, sir. please. Achita, you have done very good job. You were quite well prepared also. Thank you, sir. But don't you think कि योगा सेंटर आज के टाइम में गली गली में खुले हुए हैं and I was not able to find out any unique selling propositions. Okay, sir. Okay, and moreover the services which you are offering, Yes. what I believe is that every yoga center is offering. Okay. So I didn't find any good plan of success. Okay, sir. So basically, we plan this for the housewife mostly. क्योंकि उनको जो अभी जो ऑलरेडी योगा क्लासेस है वो उतनी फ्लेक्सिबल टाइमिंग्स नहीं दे पाते हैं और उतनी डेली या फिर वीकली या मंथली इतनी रिपोर्ट्स प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं. We are not talking about the target audience. We are talking about the plan. तो व्हाट इज द प्लान? I mean मतलब यूनिक. अच्छा. USP होता है target audience बनना. Okay. Because जितनी भी योगा क्लास में there will be especially morning class and so morning hours of females are quite busy. Right. So they are saying कि we are offering very flexible hours and targeted audience में ही होना है. अच्छा okay. Right. Flexible देंगे उनको तो it's not necessary वो morning में ही आए और सिर्फ घूमें. Good. Thank you. Got it. I missed it. I do have one question. Yes, sir. For my knowledge sake. What will be in their reports, like you said, daily reports, weekly reports, monthly reports? Yes. What these reports are consist of, and how you will generate these reports? इस सबसे पहला तो हम उनके खाने को लेके उनसे डेली के क्वेश्चंस रखेंगे कि उन्होंने आज या फिर आज आएंगे तो कल का पूछेंगे कि उन्होंने कल खाने में क्या खाया, तो वो चीज़ वो बताएंगे जिससे वो कॉन्शियस रहेंगे कि वो ऐसी कुछ चीज़ तो नहीं यूज़ कर रहे हैं या फिर नहीं खा रहे जिनसे उनकी हेल्थ को नुकसान होगा. और जो योगा के मैक्सिमम उनको अगर कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम है तो हम उनको डेली प्रोवाइड कर रहे हैं योगासन्स, तो हम वो चेक करेंगे कि वो उनको बेनिफिट्स पहुंचा रहे हैं या नहीं. पर वो सर वीकली होगा, डेली जो होगा वो खाने का ही हो सकता है मैक्सिमम. Weekly में क्या दोगे reports? My question is. अच्छा तो कि उन्होंने What will be in the reports? यस सर, उन्होंने कितने दिन परफॉर्म किया और उनको क्या फायदा हुआ वीकली, और अगर किसी को वेट लूज करना है तो वो चीज मेंशन करेंगे, किसी को इंक्रीज करना है तो वो मेंशन करेंगे. नहीं, वेट तो हो सकता है, जो मेंटल लेवल पे, how you will assess all these things? मेंटल लेवल. आपने कहा योगा is not just about the physical well-being, it's for the emotional well-being, mental well-being, etc. So how do you will prepare report about these factors? Yes sir, I just missed that, but we can hire one mental specialist, we can say, जो उनको उनकी हेल्प करेगा इस चीज में, वो उनको रिपोर्ट देगा फिर. Okay. Yes. Great. Thank you sir. Thank you. Thank you.